bad. Good. महाराष्ट्र के कौशल मंत्री आदरणीय श्री मंगल प्रभात दोला जी, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ श्री आशीष जी, हमारे CSR पार्टनर्स में रिप्रेजेंट करने के लिए कैप्चर प्लान के अनुराग प्रताप जी, और यहाँ मौजूद सभी हमारे पार्टनर्स, बिलीवर्स और सभी स्टूडेंट्स, आप सबको मेरा तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हैं। एक्चुअली मैंने एक लंबा भाषण लिखा था, बट भाषण ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि अब सब कुछ हो गया है। NSE पे लिस्टिंग भी हो गई प्रोजेक्ट की, आदरणीय दादाजी और मंगल जी की वजह से हमारी यूनिवर्सिटी भी अभी अप्रूवल हो चुकी है। तो अभी हमें काम करना है और आपके सभी इन्वेस्टर के माध्यम से हमने काफ़ी फंड्स भी अभी रेज किए हैं, उससे आने वाला भविष्य और पीढ़ी को आगे बढ़ना है। मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ कि मैंने 20 साल पहले ये संस्था शुरू की थी
मुझे लगा नहीं था कि इतनी बड़ी ये संस्था होगी और इसकी एक प्रोजेक्ट की लिस्टिंग भी होगी, इतने बड़े बड़े कंपनियों के पार्टनर्स हमारे साथ रहेंगे और आज ये मौका हमें मिला है। मैं आपको मुझे जो सीख मिली उससे इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम और मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और भारत को एक अच्छा कौशल विद्यापीठ के रूप में लोगों को और विद्यार्थियों को आगे लेकर जाएंगे। इसी श्रृंखला में आज हम हमारे 2 पार्टनरशिप अनाउंसमेंट्स करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट करने का फैसला लिया है। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ सिंजेंटा GCC, मैं अभिषेक अग्रवाल जी को मंच पर बुलाना चाहता हूँ और उनके साथ हम कौशल विकास का आगे काम करने वाले हैं। सिंजेंटा बहुत बड़ी एग्रीकल्चर की कंपनी है, मैं चाहता हूँ कि वो एक मोमेंटो हमारे और हमारी दूसरी अनाउंसमेंट है जो राहुल जी और सुधाकर पाए CGI की तरफ से एक बहुत बड़ा GCC है, वो भी आए और ये दोनों हम अनाउंसमेंट्स करें और दोनों मंत्री जी को मैं विशेष बताना चाहूँगा कि ये स्किल के लिए कौशल के लिए आगे करना चाहेंगे। हाँ भाई, You are not even connected to fuel. Just by trading on stock market, they are able to contribute to these projects which are of social importance. Notably, fuel share that over 25% of the retail funds are received organically without promotion. Prior to this, the last project listed SGBS Equity Foundation mobilized 2.69 lakh from 70 entrepreneurs, including 53 organic launches and including 5.5 lakh rupees, demonstrating the growing power of retail philanthropy by common citizens of India on the platform. It is an honor here to continue the transformative journey of the social solution, reshaping the landscape of philanthropy and impact system examination. MSC listed companies have agents of social impact, wealth creation, job opportunities, and overall economic growth. The social solution framework offers advantages such as transparency, trust, efficiency, cost savings, scalability, impact measurement, and outcome-based platform. Apart from projects listed on SSC, we are proud to share that NSC is facilitating the maiden issue of an outcome-based social bond led by the government of Madhya Pradesh, marking a new and innovative chapter in social sector financing. This initiative will support 600 marginalized youth through skill development and overseas employment opportunities. The clear focus on measurable outcomes. For implements the skill agency are built to verifiable job placements as assessed by independent impact evaluator, ensuring accountability and real impact. We introduce the DIP, the ASPA and DPM mechanism for the social solution. This initiative is a significant step towards further democratizing retail giving and facilitating seamless solutions providing further impetus to the social solution. NSC today serves over 12.8 crore on 128 million unique investors, holding 264 million on 35.4 crore investment accounts, and 99.85% of all PIN codes in the country. This has the potential to democratize retail relations even with a small percentage of people participating. I extend my sincere appreciation to all institutions, HNIs and retail donors for their support in making the fuel issue a success. We anticipate that a successful project listing of fuel will serve as an inspiration for numerous social enterprises to explore the structured mechanism for fundraising through SSC. Congratulations in the acquisition of fuel, Big Share, Vita Gokarn and company secretaries and other stakeholders for their outstanding accomplishments. Today's listing and welcome ceremony is a testament to their unwavering support and hard work. Let us celebrate this moment as another step towards in creating greater social impact, social solution and building a better future together for our next generation. Thank you. Jai Hind. Thank you, Ashish sir, for those invigorating words, inspiring all to surge ahead on the growth trajectory as we look to the positive impact that this listing will create. Time now, ladies and gentlemen, for memento presentation. I request Shri Ashish Kumar Chauhan, MD and CEO NSC, to present a congratulatory memento to Dr.
नहीं क्लोजअप मार इसके महाराष्ट्राचे आदरणीय छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना वंदन करून आजच्या या अतिशय महत्त्वाच्या कार्यक्रमामध्ये ज्यांचे आशीर्वादाने कार्यक्रम होत आहे त्यांचे आशीर्वाद आपल्या सर्वांना सदैव मिळावा असा सर्वांच्या मनामध्ये असे आमचे देश पूर्व भाजपा अध्यक्ष आताचे एज्युकेशन मिनिस्टर डॉक्टर श्री चंद्रकांत पाटील NSCचे MD CEO આ જગ્યાએ માલિક અને સર્વાંसाठी ઓલવેઝ અવેલેબલ असे श्री आशिष कुमार चव्हाणजी जेनी ती संस्थाचे आणि सर्व CSRचे प्रतिनिधी म्हणून और आज के इस बारात के दूल्हे जिनके निमंत्रण की और जिनकी फंक्शन को एंजॉय करने के लिए हम सब आए हैं आपके हमारे सबके लाडले लड़ाके हमारे फाइटर ऑन द गुड कॉज डॉक्टर केतन देशपांडे को आशीर्वाद देने के लिए आए हुए बुजुर्ग लोग उनके परिवार के लोग उनके मित्रगण उनके टीचर्स और केतन जी आपके स्कूल के बच्चे वहाँ से बोनस है सभी प्यारे बच्चों समय की मर्यादा है केतन जी ने तो कहा कि मैं बड़ा भाषण लिख के आया था पर छोटा ही पढ़ता हूँ मेरी तो प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरा भाषण ही नहीं है मेरे हाथ के अंदर बोलने की कोशिश करूँगा पर अच्छा है आपका टाइम सेव हो जाएगा ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता कोई आदमी लिख के तैयार होकर नहीं आता है तो उसको शॉर्ट में समेटना पड़ता है तो इस फ्यूल संस्था का पूरा नाम क्या है इसमें इसकी पूरी कहानी छपी है फ्रेंड्स यूनियन फॉर एनर्जाइजिंग लाइफ फ्रेंड्स यूनियन फॉर एनर्जाइजिंग लाइफ तो जब ये बनी थी फ्यूल तब इनको मालूम नहीं था कि ये इसके भविष्य की बन जाएगी तब इनको ये भी नहीं मालूम था कि कभी इसका पब्लिक में ये जाएंगे इसकी लिस्टिंग कराएंगे और चंद्रकांत दादा जैसे बड़े आदमी की लिस्टिंग को ब्लेसिंग देने के लिए आएंगे और आप सब लोग आएंगे पर तभी इनके मन में एक बात पक्की थी फ्रेंड्स यूनियन और इसलिए इन्होंने बड़ी कंपनी नहीं बनाई NGO बनाया ये चाहते उसको कॉमर्शलाइज करके 100 करोड़ का भी क्या बोलते हैं इसको आपको इश्यू 100 करोड़ का भी मैं बिजनेस में हूँ छोड़ चुका बच्चे बिजनेस के बाद इसमें खत्म निकल गए दिमाग से तो 100 करोड़ का इश्यू भी ला सकते थे 1 करोड़ का इश्यू लाए 1 करोड़ का इश्यू क्योंकि इनको सबको साथ में लेकर चलना था 1,000 रुपये देने वाले लोग भी इसमें हैं और ये बड़े बड़े लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसको 98 लाख से 1 करोड़ के टारगेट को पूरा करने के लिए किसी ने 25 लाख किसी ने 15 लाख रुपये दिए होंगे पर बात यह समाप्त नहीं हो जाती है बात होती है मानसिकता की भगवान श्री रामचंद्र उस समय के सबसे बड़े राजा थे वो इतने बड़े राजा थे कि राजा दशरथ भी इंद्र भगवान को जब जरूरत पड़ती थी वो लेने के लिए राजा दशरथ जाया करते थे पर जब भगवान राम को वनवास मिला तो भगवान राम किसी राजाओं के पास में नहीं गए कि मेरा क्या होगा मैं सीता को लेकर देखने में कहाँ जाऊँगा वो साधारण आदमी के पास में गए जिसका कोई नहीं उनके पास में गए वानरों के पास में गए सुग्रीव के पास में गए केवट के पास में गए ये समाज के सबसे वो लोग थे साधारण लोग थे मैं किसी से किसी की तुलना नहीं करना चाहता हूँ पर मानसिकता की तुलना जरूर करूँगा कि केतन दास पांडे जी जब केतन देश पांडे जी को जब जरूरत पड़ी आगे बढ़ने की तो वो टाटा बिरला बांगड़ अंबानी अदानी के पास नहीं गए आप लोगों के पास आए और 1 लाख 2 लाख रुपये जमा करा के उन्होंने 98 और बताइए आप आगे बढ़ोगे और वो दिन दूर नहीं है कि जब यहाँ पर हमको आप वापस बुलाओगे और इस बार आप चाहोगे 1 करोड़ का करने का कभी सब मेरे 47 साल के सामाजिक और राजकीय जीवन में पहला यह प्रसंग मैं अनुभव कर रहा हूँ कि जिसमें कोई अच्छा काम होता है तो कुछ देने के लिए होड़ लगी कॉम्पिटिशन लगी अदरवाइज सामाजिक काम करने वालों ने अलग अलग व्यक्तियों के पास जाना अपना काम प्रेजेंट करना फिर वो कहेंगे बाद में देते हैं तो फिर 1 लाख की अपेक्षा करना 5,000 रुपये मिलना
तो ये एक नई कंसेप्ट जिसको मैंने एक समझा कि माननीय मोदी जी देश के पंतप्रधान होने के बाद उन्होंने CSR की जो कंसेप्ट रखी 5 करोड़ से ज़्यादा प्रॉपर्टी का है उसका 2% सामाजिक कामों के लिए खर्च करना है कंपल्सरी, और वो अपने फैमिली ट्रस्ट में न खर्च करते हुए उन्होंने अलग कामों के लिए खर्चा करना है। तो शुरुआत हुई तो कुछ लोगों ने टाला भी, बाद में कंपल्सन हुआ कि मैनेजमेंट में उनको % देखने चाहिए, तो लोग बाय कंपल्सन देते गए। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे जाते गए तो ध्यान में आया सारे कंपनियों को भी पैसा कमाने में जो आनंद है उससे ज़्यादा देने में आनंद है। और करते करते अब ये स्टेज आई कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने यह ट्रेड के लिए तो देश भर से 15 सोशल ऑर्गेनाइजेशन अब तक लिस्टिंग हुए है, तो उसके लिए बेहतरीन का सेरेमनी आयोजित किया है। वहाँ मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के स्किल डेवलपमेंट पोर्टफोलियो के मिनिस्टर जिनकी यह 7वीं स्किल यूनिवर्सिटी है, इसी एडिशन में 8वीं भी दी गई। कुल मिलाकर स्किल की दुनिया भर की आवश्यकता को ध्यान में लेकर लगातार वो अच्छे लोगों को यूनिवर्सिटी दे रहे हैं। ऐसे स्किल यूनिवर्सिटी के हमारे मिनिस्टर मित्र मंगल लोढ़ा जी, NSE के MD आशीष चौहान जी, मंत्री मंत्री देशपांडे जी, सभी उपस्थित अलग अलग कंपनियों के CEO है, CSR के हेड है, मधुर बहन है। मैंने पहले जो बोले उन्होंने इसके बारे में बताया कि उनका अभिनंदन किया। और ये बात सच है कि बहुत दिन से स्किल डेवलपमेंट में काम करते हुए कुछ रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट में कुछ चीज़ें कई भी पूरा करने के बाद ही सैंक्शन मिलता है। कई बार आपको लगता है कि किसी की पहचान से काम होगा, दूसरे होगा, वो तो सारे नियम पालन करो। तो 3 साल से उनका प्रयत्न चल रहा था रिक्वायरमेंट को पूरा करने में। आखिरी में आज ये मिलन आया कि अभी हुए अधिवेशन में कैबिनेट में भी प्रस्ताव पारित हुआ, विधानसभा और विधान परिषद में कानून भी हुआ, उसका कानून बना था। अब ये राज्यपाल के पास साइन के लिए गया, उनको साइन हो जाएगी और जून से फिर ये यूनिवर्सिटी के रूप में स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी के रूप में सामने आएगी और उसमें वो आर्थिक मदद करने के लिए आ पाएगी। एक बात कहकर मैं मेरा भाषण समाप्त करूँगा कि आप जैसे लोग जो देने लगे और इस प्रकार से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग होने के बाद आपको भरोसा लगेगा कि लिस्टिंग हुए तो अच्छे लोग हैं, अच्छा काम है, आप देंगे, तो आपके लिए भी सुविधा हो गई कि सारा बिल्कुल आपके सामने प्रोफाइल आएगा और उधर से काम करने वाले लोगों को भी अच्छा होगा कि पैसे आराम से मिलते जाएंगे। इसमें 2-3 चीज़ों पर आप सब लोगों ने पैसे देने पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। उसके लड़की होगा शिक्षा, जिस पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी सोचा और पूरे महाराष्ट्र में जिनके माझं नाव डॉक्टर केतन देशपांडे, मी फ्युअल संस्थेचा संस्थापक अध्यक्ष। आज महाराष्ट्राचे कौशल मंत्री माननीय मंगलप्रभात लोढाजी, माननीय शिक्षण मंत्री माननीय चंद्रकांत दादा पाटील यांच्यासोबत फ्युअल संस्थेने सोशल स्टॉक एक्सचेंजवर आज आपला प्रकल्प लिस्ट केला आहे। या प्रकल्पाचं वैशिष्ट्य असं की वेगवेगळ्या कानाकोपऱ्यातनं भारतातनं डोनेशन देऊन CSRच्या माध्यमातून इंडिव्हिज्युअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या माध्यमातून 40 मुलींचं शिक्षण मोफत होणार आहे आणि हा 40ला न थांबता आपण 400पर्यंत घेऊन जाणार आहोत। कौशल विद्यापीठाची पण मान्यता मिळाली आहे महाराष्ट्र सरकारकडनं, जेणेकरून आपण भारतीय विद्यार्थ्यांना आणि महाराष्ट्रातल्या खास करून विद्यार्थ्यांना कौशल्य देऊन त्यांना उभं करणार आहोत, असा आमचा ह्या प्रकल्पाचा मानस आहे। आम्ही सगळ्यांना कॉर्पोरेट जगतला पण विनंती करतो की तुम्ही समोर येऊन तुम्हाला नेमकं कोणतं कौशल्य पाहिजे हे आमच्या विद्यार्थ्यांना सांगा। आमच्यासारख्या संस्था आहेत ज्या त्यांना ट्रेनिंग देतील, काउन्सिलिंग करतील, मेंटरिंग करतील, स्कॉलरशिप्स पण देतील आणि तुम्हाला योग्य मनुष्यबळ पण पुरवेल। अशा प्रकारे आम्हाला महाराष्ट्रातल्या तरुणांना पण सगळ्यांना सांगायचं आहे की तुम्हाला जर शिष्यवृत्तीवर चांगलं कौशल्य शिक्षण शिकायचं असेल तर जरूर आमच्या संस्थेबद्दल माहिती घ्या आणि आम्ही तुम्हाला ते शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करू। धन्यवाद। रामनवमी पण ते वेळी पण ज्याने गरज होती त्याने सिलेंडरसाठी मदत केली होती।
आपण एक समजून घेतला पाहिजे की हे जे धार्मिक क्षण असतात त्यांच्यासाठी रेग्युलर सिलेंडर उपलब्ध नसतात, त्यांचे गॅस कनेक्शन पण नाही आहे, ते कधी कधी साल में 3-4 वेळा ते करतात. तर त्याने स्पेशल सपोर्ट नेहमी पाहिजे. माझ्याकडे जे काही आले ते शिर्डीचे संस्थाचे लोक आले होते, ते साईबाबा संस्थाचे, त्याने पण मी गॅस दिले. इथे जैन धर्माचे आले त्याने पण दिले, आता रामनवमीचे आले त्याने पण दिले. मी छगन भुजबळ साहेबने पत्र लिहून सांगितलं आहे की आता 2 दिवसानंतर हनुमान जयंती आहे, त्याच्यासाठी पण व्यवस्था करावा. 14 ऑक्टोबरला डॉक्टर आंबेडकर जयंती आहे, त्याने पण व्यवस्था करावा. हा काय चुकीचं आहे का त्यामध्ये? आपण धार्मिक सणासाठी रेग्युलर गॅस कनेक्शन उपलब्ध नाही आहे, सर्वांना माहीत आहे. मी सर्वांसाठी करतो. माझी विधानसभामध्ये कोणी आजही कोणाने माझ्याकडे लावून दिले तर मी नक्की त्याच्यासाठी करणार आहे. मी हा आक्षेपातून घाबरणार नाही आहे. हा माझी विधानसभाचे आमदार म्हणून माझी रेस्पॉन्सिबिलिटी आहे की माझे मतदाराने, माझे मतदाराचे संस्थाने काही गरज असेल तर माझे जे काही शक्य असेल त्याने मदत करू. यामध्ये ते माझे सर्वांना सांगायचे आहे की हा जातीमध्ये तेढ निर्माण करायचा आपला जे प्रयत्न आहे कधीतरी थांबा ना. आपली या हिंदू विरोधी मानसिकता झालेली आहे ते पण तुम्ही करा की तुम्ही या कित्येक कुठपर्यंत तुम्ही जाणार आहे. हिला इतर धर्मासाठी पण मी लेटर दिली. नाही आहे, बरोबर आहे. गॅसचा तुकडा अजिबात नाही आहे, हा सत्य आहे. फक्त जे स्पेशल फंक्शन आता त्यांच्याकडे रेग्युलर गॅस कनेक्शनची सप्लाय नाही आहे, त्याने नेहमी ते प्रयत्न करतात. तो प्रयत्नमध्ये कोणाने मदत केली पाहिजे ते मैं मदत केली. सर आज आपने एक लेटर लिखा हुआ था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उथक पथक हो रही है सर पॉलिटिक्स. ऐसा है कि अभी ये फैशन हो गई है और ख़ास करके उन लोगों के लिए जिनका जब राज था तो वो नमाज तो सड़कों पे अलाउड करते थे और गणपति मंडलों के उस समय उन्होंने रोक लगाई थी. ये वही लोग हैं जो कोई भी हिंदू क्षण आए तो कुछ लोगों को खुश करने के लिए उसका विरोध करते हैं. मैंने ऐसा ही पत्र रामनवमी के लिए भी गैस कनेक्शन के लिए मदद की. मैं ऐसा ही पत्र मैंने हनुमान जयंती 2 दिन बाद उसके लिए भी लिखा है. और पत्र छोड़िए, मेरी विधायक होने के नाते, एमएलए होने के नाते, धारासभ्य होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी विधानसभा के अंदर किसको कोई भी ज़रूरत हो, तकलीफ हो तो मैं उसको करूं. गैस का टुकड़ा महाराष्ट्र में नहीं है, देश में भी नहीं है, पर ये जो धार्मिक क्षण होते हैं इसमें स्पेशल उस समय गैस की उपलब्धता करानी पड़ती है, शुरू हर बार करानी पड़ती है. और इसके लिए चाहे वो रामनवमी हो, चाहे जैनों का स्थान हो, चाहे वो हनुमान जयंती हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर जी का दिन आएगा तभी 14 अप्रैल को मैं लोगों के लिए उपलब्ध रहूँगा. मैं ऐसी बातों से घबराने वाला नहीं हूँ. मुझे अभी भी लगता है कि ये हिंदू विरोधी, हिंदू क्षणों के विरोध में वातावरण क्रिएट करने का जो कुछ लोगों का षड्यंत्र है, वो षड्यंत्र लोगों के सामने इसका पर्दाफाश होना चाहिए और ये कभी न कभी बंद भी होना चाहिए. हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू क्षणों के ऊपर हर बार प्रतिबंध उठाना, मांग करना, विरोध का वातावरण तैयार करना, ये कहाँ तक सही है मैं कहना नहीं चाहता हूँ. पर 10 दिन पहले रोजे होके गए, तभी किसी ने पूछा क्या कि मालवनी में कहाँ से गैस सिलेंडर आए. अभी आज किसी के हिंदुओं के क्षण आ रहे थे, इनको 4 सवाल मन में खड़े हो जाते हैं. 47 वर्षाच्या सामाजिक आणि राजकीय जीवनामध्ये हा कार्यक्रम असा मी अटेंड केला की ज्याच्यातून सामाजिक काम करताना जो आर्थिक चणचण असते त्या विषयातला एक कॉन्फिडन्स मला आला की फार मोठ्या प्रमाणावर CSR हे तर कायद्याने कंपल्शन झालं. पण आज इथे लिस्टिंग केली आपली सामाजिक संस्था. अनेक इंडस्ट्रीज ज्यांना CSR द्यायचा असतो त्यांना स्क्रुटिनी करावी लागणार नाही की संस्था चांगली आहे की नाही, द्यावं की नाही द्यावं. जसं आज फ्युएलला माझ्यामध्ये पण 2.5 कोटी रुपये मिळाले की ज्यातून त्याने 2.5 लाख एका मुलीला असे 100 मुलींना स्कॉलरशिप दिली. फ्युएलला स्किल डेव्हलपमेंटची युनिव्हर्सिटी पण मान्यता मिळाली आणि त्यामुळे खूप हेवी शेड्यूल असूनही आज मी आग्रहाने आलो तर म्हणजे कन्सेप्ट सोडून घ्यायची, फ्युएलला अप्रिशिएट करायचं. त्यामुळे मी स्टॉक एक्सचेंजचं पण आभार मानतो की एक न्यू कन्सेप्ट त्यांनी आणलं. फ्युएलचं अभिनंदन करतो की ते ह्या प्लॅटफॉर्मवर लिस्टिंग. सर 2 लाइन हिंदी मेरे फ्यूल का NSC से कोलैबोरेशन नहीं हुआ. कंसेप्ट को समझो कि यहाँ अच्छे काम करने वालों ने शेयर जैसे लिस्टिंग होता है, जैसे अपनी संस्था पर लिस्टिंग होती है, फिर अपना काम खत्म.
कि जिनको डोनेशन देना है उनको अब विचार करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ लिस्टिंग हुआ वेल ऑर्गेनाइजेशन, तो फ्यूल यह पूरे देश में 15 संस्थाएँ इस प्लेटफॉर्म पर आई, उसमें सिर्फ 15 भी है। फ्यूल को आज एक ही दिन में 2.5 करोड़ रुपये, तो उसमें से उन्होंने वो सर्टिफिकेट सारी लड़कियाँ आई है, 2.5 लाख प्रति लेडी स्टूडेंट, ऐसे 100 लेडी स्टूडेंट को वो स्कॉलरशिप है। तो अब ये बढ़ता ही जाएगा। मेरी लगभग 36 अलग अलग प्रकार की संस्था है, उसमें से 6 तो ऐसी है कि उसको हम लिस्टिंग कर पाएँ। तो जब सामाजिक काम करते हैं, महिला सबलीकरण हो, बच्चों को काम करना, सीनियर सिटीजन को काम करना, तो पैसे का बड़ा प्रश्न रहता है, कहाँ से पैसे लाएं। तो मैंने मोदी जी ने तो कंपल्शन ही किया कि 5 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन का होगा उनको 2% CSR यानी सामाजिक कामों के लिए खर्चा करना कंपल्शन है। अब वो कंपल्शन वाले कंपनियों को किनको दें, तो यहाँ लिस्टिंग हुआ है ना, तो इनको दें। ऐसा एक बहुत ही नया विषय आज ध्यान में आया, इसलिए मैं उस विषय को समझने के लिए आया, क्योंकि आई एम लेस पॉलिटिशियन एंड मोर सोशल। हाँ, तो फ्यूल को यूनिवर्सिटी करके भी मानते हैं। So one question we used. The question is that you spoke about the girl child education policies in Maharashtra and the kind of assistance that the Maharashtra government would be providing. What are those policies and means like you're looking at, and how are you going to provide the financial assistance to the girl child and women? अभी महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 43 लाख कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, उसमें 14 लाख इतना व्यस्त प्रमाण है यह लेडी स्टूडेंट छात्रा है। उसको यदि बढ़ावा देना है तो उनकी एजुकेशन फ्री करनी पड़ेगी। तो लास्ट ईयर से उनकी आधी फी गवर्नमेंट भरती थी, उसको पूरा किया, तो अभी 842 कोर्सेज में उसको पढ़ते वक्त ट्यूशन फी नहीं देनी है, मेडिकल से लेकर और एग्ज़ाम फी में देनी है। इससे मतलब एक साल में 57,000 छात्राओं की संख्या बढ़ गई। ऑलरेडी 60,000 पर लेडी, 60,000 जेंट्स भी को 6,000 प्रति माह, तो 10 महीने का साल गिनते हैं तो 60,000 रुपये हॉस्टल और मेस के लिए देना ऑलरेडी शुरू है। तो फिर उसको हॉस्टल और मेस के लिए भी पैसे नहीं देगा। अब ट्यूशन फी को वेव करने के बाद एक अदर फी नाम का एक कॉलेज है, जिमखाना भी, उसको भी शायद गवर्नमेंट पहले तो उनको मॉनिटर करना कि इतनी क्यों लेते हो भाई, और जो बनेगी वो गवर्नमेंट देने का प्रयत्न करेगी। तो नो ट्यूशन फी, नो अदर फी, नो एग्ज़ाम फी एंड हॉस्टल में सारा होगा। इसके अलावा प्रति माह 2,000 रुपये 5 लाख छात्राओं को मिले अर्न एंड लर्न। कॉलेज में लाइब्रेरी में काम करे, लेबोरेटरी में काम करे, पौधे लगाने का काम करे, या कॉलेज के एरिया के जैसे सोशल प्रोजेक्ट में काम करे, 60 रुपीज़ पर आवर, तो एटलीस्ट 2,000 रुपये उसको मिलना चाहिए। दैट विल बी हर पॉकेट मनी। उसका डिज़ाइन हो रहा है, अदर फीस का भी डिज़ाइन हो रहा है, लेकिन 100% फी वेव ऑलरेडी शुरू। सर इंधन तुटवड्यावरून जे आहे, जिनके माता पिता जी की एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, यानी प्रतिमा 70,000 से कम है, उनके लिए। सर इंधन तुटवड्यावरून जे आहे ते विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवरती टीका सुरू केलेला आहे। रांगाच्या रांगा दिसत आहेत, पण सरकार म्हणतंय की इंधनाचा तुटवडा नाही आहे। पण मला तुमच्याकडे काय माझ्याकडे काहीच नाही, काय कमाल? पब्लिक ट्रान्सपोर्टने काम करते। बरं, मग तुमच्या ओळखीमध्ये त्यांची 4 व्हीलर आहे, त्यांना विचारा की पॅनिकिझममधून जे चाललं आहे ते चाललं आहे। आता संपूर्ण जगामध्ये शॉर्टेज पण आहे आणि किमती पण वाढली। आपल्याकडे 1 रुपया पण किंमत नाही वाढली। हां, गॅस सिलेंडरमध्ये सुद्धा घरगुती गॅस सिलेंडरमध्ये कुठेच प्रॉब्लेम लोक आपलं काय होतं, पॅनिकिझम जास्त घेऊन टाकतात। कमर्शियलला भविष्यात ते प्रॉब्लेमने डोमेस्टिकला म्हणून रिस्ट्रिक्ट केलं। त्यामुळे मला असं वाटतं रांगा ज्या आहे त्या असं झालं आहे का, तिकडे संपलो, तिकडे कुठे मिळालंच नाही असं नाही आहे। आणि त्यामुळे त्या रांगाही ज्या वेळेला लक्षात आलं की असं काही प्रॉब्लेम करता येणार नाही, हळूहळू रांगा कमी। मोदीजींचं कौतुक करण्याच्या विरोधकांनी टीका करायची असते, पण अशा नॅशनल इश्यूजवर ज्यात संपूर्ण देशाने एकत्र राहिलं पाहिजे,
टीका करण्याची मजा नाही. सर अशोक खरात या पॅटर्नमध्ये दीपक केसरकर असं म्हणतात की 39 आमदारांनी भेट दिली मला वाटतं होती. या विषयामध्ये जे म्हणायचं ते ह्या 1.25 महिन्याच्या अधिवेशनामध्ये वारंवार मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं. थँक्यू सर.